Hello students, today we will discuss modified Euler's method for the solution of ordinary differential equations. Is then the two formulas used ਹੁੰਦੇ ਨੇ, one is same as the previous Euler's method. For example, ਜੇ ਅਸੀਂ y1 calculate करना है, formula will be y0 plus h into f of x0 y0. Next ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ we will accurate this value. ਇਹ approximate value of y1 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ accurate ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ. So for more accuracy in y1 ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ y1 dash calculate ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ, that is y0 h by 2 f of x0 y0 plus f x0 plus h y1. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ accurate ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ y1 double dash ਜਾਂ y1 2 second value of y1 ਕੱਢਣੀ ਹੈ, that is y0 h by 2. ਇਹ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ f of x0 ਪਲੱਸ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ f of x0 plus h ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ y1 ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈ, ਦੈਨ ਉਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸਪੋਜ਼ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਵੈਲਿਊ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ y0 plus h by 2 f of x0 y0 f of x0 plus h ਐਂਡ y1 ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਆਈਲਰਸ ਮੈਥਡ. ਆਈਲਰਸ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ y1 ਨੂੰ. ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਜਿਟਸ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ. ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ y2 ਕੱਢਣਾ, ਦੈਨ y2 ਵਿਲ ਬੀ y1 plus h f of x1 y1. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y2 ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੈਨ ਦ y2 1 will be y1 plus h by 2 f of x1 y1 plus f of x1 plus h ਜੋ ਅਸੀਂ y2 ਕਰਿਆ. ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ f of x1 y1 f of x1 y1 x1h ਫਿਕਸ ਹੈ, y2 ਦੀ ਪਲੇਸ 'ਤੇ y2 ਦੀ ਫਸਟ ਕਰੈਕਟਡ ਵੈਲਿਊ. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ y2 ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੈਕਟਡ ਵੈਲਿਊ, that will be y2 333. rest of all functions will be same and so on. Now we will see how to apply the formula. So using Euler's modified method, obtain the solution of the equation dy by dx x plus modulus of under root of y. These are initial values given to us. x0 is 0 and y0 is 1. Range of values is 0 to 0.6 and step size we mention कितना है कि take h to be 0.2. तो असी start करना है from x0 is equal to 0 ते कितने पहुँचना है 0.6 ते. तो सानू h कितना दिता 0.2 मीनस असी किन्नियां वैल्यूज़ कढ़नी है. असी कढ़ना होएगा y at 0.2, इनू यूज़ करके कढ़ना होएगा y at 0.4, इसनू यूज़ करके कढ़ना पेगा y at 0.6. फाइनली ये साडा आंसर आ जाएगा. सो फर्स्टली व्हाट इज़ आवर फंक्शन f of x y? इट इज़ x plus under root of y modulus. what is value for h? 0.2. what is x0? what is y0? ठीक है, x0 is 0 and y0 is 1. So now we will prepare table of values. तो table of values किमें लिखना होंदा? Firstly x दी value, then ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ f of x y यानी कि dy by dx कितना सी x plus modulus of under root of y. mean slope ਦਾ मतलब है slope is what is first derivative. तो अगर उरे दो डेरीवेटिव पिछे पॉसिबल ने तो उन्होंने दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 इदा ही कढ़ते हैं एवरेज आप. दैन ये फॉर्मूला है न्यू y इज़ ओल्ड y प्लस जो साडा आइलर्स का फॉर्मूला सी, आइलर मैथड का फॉर्मूला सी yn इज़ इक्वल टू yn माइनस 1 प्लस h इंटू h डिवाइडेड बाय 2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x0 प्लस h इंटू, ठीक है, ये आइलर्स वाला फॉर्मूला लिख लिया सी. सो सिंपल याद रखना तो ओल्ड y प्लस h इंटू द मीन स्लोप. So starting value was x0 is 0, dy by dx 0 plus y0 कितना सी साडा 1. हजे तक कोई प्रीवियस स्लोप नहीं हैगा इसलिए नो मीन स्लोप विल बी देयर, कैंसल करो इसनो. नाउ कम टू द y1 is, so y1 is y0 plus h. f of x0 y0 सीगी ना, y0 is 1, h is 0.2 and this is a slope means derivative कितना है 1. सो कैलकुलेशन की थी तो फर्स्ट पॉइंट आ गया y1.
ਹੁਣ ਇਹ y1 ਹੈ ਆਇਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ y1, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਆਇਲਰਸ ਮੈਥਡ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਸਾਈਜ਼ 0.2 ਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ h ਐਡ ਕੀਤਾ 0.2, then what is the slope? Slope is x plus modulus of under root of y। तो x कितना लेके चल रहे हैं 0.2, y कितनी लेके चलनी है जो पीछे कैलकुलेट करके आ गए आप 1.2, तो अंडर रूट लिया मॉडुलस लिया, कैलकुलेटर कोल रख के फिर कैलकुलेशनस होणगियां। वॉट इज़ अ मीन स्लोप? तो मीन स्लोप कढ़ना है तो अगे अगे वाले डेरीवेटिव चेंज हो ही जाना है, ये वाला फर्स्ट डेरीवेटिव फिक्स ही रहूगा साडा। तो मीन स्लोप इज़ 1/2, इस डेरीवेटिव की वैल्यू कितनी आई सी 1, हुण डेरीवेटिव की वैल्यू कितनी आई है ये दोनों की एवरेज। मॉडिफाइड वाई की है वाई नॉट प्लस h/2 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 y1, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। सो y1 डैश इज़ वाई नॉट कितना सी 1 h एंड जो असी मीन स्लोप कट के आए हैं इनू कैलकुलेट कर लिया। ये y1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, देखो फर्स्ट पहले की आया सी 1.2, हुण कितना आ गया 1.2295, एरर है। अगे चलते हैं, इनू चेंज नहीं करना हाल दी, क्योंकि हजे असी इसे नू जदों तक ये मैच नहीं करती असी इसे स्टैप ते ही रहना है, 0.2 स्टैप ते ही रहना है। तो ये चेंज नहीं होगा, स्टैप कदों चेंज होएगा जदों साडी वाई मैच करनी शुरू हो जाएगी, तो 0.2 ही रहेगा, ठीक है। ये वाई अगे शिफ्ट करके असी इस फॉर्मूले च यूज़ कर लैनी है एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। तो एक्स इज़ 0.2, वाई जो कैलकुलेट की है अंडर रूट लिया मॉडुलस लिया, दैन मीन स्लोप की है, मीन स्लोप इज़ 1/2 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस जो लेटेस्ट स्लोप निकले, ये लेटेस्ट स्लोप है, ये साडा फर्स्ट स्लोप है, फर्स्ट स्लोप एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट एंड 1/2, ये मीन स्लोप आ गया। सो दिस इज वाई नॉट प्लस एच इंटू मीन स्लोप, वाई नॉट इज़ 1 एच एंड मीन स्लोप, ये y1 डबल डैश हो गया। चेक करते हैं आप, ये देखो हजे भी एरर है, ये 1.2295 है, ये 1.2309 है, मैच नहीं करी हैगी। फिर अगे चलते हैं आप, स्टैप चेंज नहीं करना जब तक ये वैल्यू मैच नहीं करती। तो x 0.2 दैन y स्लोप निकल गया, मीन स्लोप इज h/2 फर्स्ट स्लोप एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 y1 डैश। तो ये वैल्यू जी लेटेस्ट स्लोप दी आई है, ये फर्स्ट स्लोप साडा पहले तो ही जो कैलकुलेट किया होया इन्हां दी एवरेज। सो हुण ट्रिपल यानी कि थर्ड कैलकुलेशन ऑफ y1 दैट इज़ वाई नॉट प्लस एच इंटू द मीन स्लोप जो पिछे कड्ढे आ लो, ठीक है। यही वैल्यू असी उरे शिफ्ट की, तो मीन स्लोप आ गया। नाउ हुण असी जो कैलकुलेशन आई है उन्होंने मैच करते हैं, एग्जैक्टली मैच कर गई। सो एग्जैक्टली मैच कर गई, तो हुण असी की कहना है कि y1 की आया जो एग्जैक्ट मैचिंग हुई सी y1 दी। नाउ वी विल कंसिडर दिस टू बी द वैल्यू ऑफ y1, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ y1। हुण असी अगले स्टैप ते चलते हैं। सो असी ये ऑबजर्व करिया दैट 0.2 दे उत्ते असी किसनू y1 मन के चले हैं, एट 0.2 वट इज़ आवर y1 इज़ 1.2309, उस y1 नू लैके असी इस फॉर्मूले च भरिया x 0.2 y1 1.2309 मॉडुलस अंडर रूट सॉल्व किया, दिस इज़ आवर फर्स्ट स्लोप। हुण अगले स्टैप का यह फर्स्ट स्लोप बन गया, इस स्टैप च हजे तक कोई होर स्लोप नहीं सी, सो यही साडा मीन स्लोप है। अगे हुण इत्थे देखो आ फर्स्ट स्लोप है तो आ सैकेंड स्लोप हो गया, ये फर्स्ट स्लोप है तो थर्ड स्लोप हो गया, अगे मीन स्लोप निकलणगे। सैकेंड स्टैप का फर्स्ट स्लोप जोड़ा है हजे नहीं है, पिछे वाले नहीं लैने क्योंकि असी अगले स्टैप पर आ गए। एक बार असी वैल्यूज़ लिखिया, हुण असी इहदे अंदर अगे शिफ्ट कर देनी है वैल्यू। सो ये मीन स्लोप इस कुछ नहीं आना, सिर्फ यही वाला स्लोप मीन स्लोप आ जाऊगा, ये नहीं कैलकुलेशन होनी क्योंकि स्लोप इज़ नॉट देयर, इक्वेशन है, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल बी y2, पहले y0 प्लस h लिख रहे थे, हुण आ जाएगा y1 प्लस h एफ ऑफ x1 y1 यानी कि मीन स्लोप पूरे, ये आ जाएगा साडा स्लोप मीन स्लोप
तो y1 1.2309 ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ y ਮੰਨਿਆ, y1 h 0.2 ਮੰਨਿਆ ਐਂਡ ਸਲੋਪ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ y2 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ y2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो y2 ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ y2 ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, x2 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। तो ਸਟੈਪ 0.2 ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਸ y2 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ x ਪਲਸ y2 ਮੋਡੂਲਸ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਸਲੋਪ। ਆ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਸਲੋਪ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ, ਐਵਰੇਜ ਮੀਨ ਸਲੋਪ। ਇਹ ਸਲੋਪ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗਾ, ਇਸੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਪ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਇਜ਼ y2 ਦੀ ਫਸਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, y1 ਪਲਸ h ਇੰਟੂ ਮੀਨ ਸਲੋਪ। ਸੋ y1 ਕਿੰਨੀ ਕਰੈਕਟ ਮੰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ, 1.2309 h ਇੰਟੂ ਦ ਮੀਨ ਸਲੋਪ। ਇਹ y2 ਦੀ ਫਸਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ y2 ਐਂਡ y2 ਦੀ ਕਰੈਕਟਡ ਵੈਲਿਊ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮੈਚਿੰਗ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। तो स्टैप उदों तक नहीं चेंज करना ज़्यादा तक साडा आपस च y2 ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। सो नैक्सट असी इस y ਨੂੰ ਅੱਗੇ शिफ्ट करते हैं, y2 ਦੀ फस्ट ਕਰੈਕਟਡ ਵੈਲਿਊ करना की सी इत्थे x प्लस अंडर रूट ऑफ y ਦਾ मॉडुलस। सो x इज़ 0.4, y इज़ 1.524 मॉडुलस एंड अंडर रूट। then what is the mean slope? first slope is 1.3094 into the latest slope, एवरेज होना दी। सेकेंड करैक्टेड वैल्यू ऑफ y इज़ y1, फॉर्मूला ही रहना ना, y1 नहीं चेंज होनी, y1 ते h अफेक्ट नहीं होने, y1 प्लस h इंटू द मीन स्लोप। आ मीन स्लोप लेटेस्ट निकलिया साडा। इत्थों नैक्सट y2 आ गई, की पिछली y2 दे नाल मैच की? नो, एक स्टैप होर अगे जावांगे, पिछलियां 2 डिजिट्स मैच नहीं कीतियां हैगियां। सो नैक्सट हले तक भी स्टैप चेंज नहीं होना, इस y नूं अगे शिफ्ट किया असीं। सो ये आ गया साडा x प्लस अंडर रूट ऑफ y, प्रीवियस स्लोप फस्ट स्लोप, ये फस्ट स्लोप इनटू द लेटेस्ट स्लोप, ये हो गया साडा मीन स्लोप। y2 दी थर्ड करैक्टेड वैल्यू इज़ y1 प्लस h इंटू मीन स्लोप। y1 जो करैक्टेड y1 सी, h इंटू द मीन स्लोप, एग्जैक्टली मैच कर गई वैल्यूज़। तो हुण असीं अगले स्टैप ते शिफ्ट होवांगे, तो इसनूं असीं अपनी करैक्ट y2 मन के चलांगे जो साडी वैल्यू मैच की है। सो वी विल टेक y2 बी 1.5253। सो एक बारी असीं फस्टली एवें ही लिखांगे कि हुण तक की होया। सो x वॉज 0.4, जिस च असीं करैक्ट y ये मन्नी है, इस y नूं असीं इत्थे शिफ्ट किया, सबसटीट्यूट किया, x की वैल्यू 0.4 लिखी, तो साडा ये फस्ट स्लोप आ गया। फस्ट स्लोप ही है इस स्टैप का, इसलिए इसका कोई मीन नहीं निकलेगा। then what will be y3 is y2 plus h into the slope, ठीक है। ये साडी फस्ट y3 आ गई। हुण असीं इस y3 नूं करैक्ट करांगे, तो असीं एक स्टैप अगे चलते हैं, इस y नूं असीं इत्थे शिफ्ट करते हैं, सबसटीट्यूट करते हैं y दी प्लेस ते y3 नूं, एंड असीं एक स्लोप निकल गया। ये साडा फस्ट स्लोप है इस स्टैप का, ते दोनों का एवरेज स्लोप कढ लिया। सो y3 दी फस्ट करैक्टेड वैल्यू इज़ y2 प्लस h इंटू द मीन स्लोप। यह साडी फस्ट करैक्टेड वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू के नाल मैच नहीं कर रही। तो इसनों फिर अगे लैके चलते हैं, यूज दिस एज अ y, फाइंड द मीन स्लोप इज़ प्रीवियस स्लोप प्लस द लेटेस्ट स्लोप डिवाइडेड बाय 2। पिछला स्लोप तो यही वाला नवा स्लोप जोड़ा कढ़िया, स्लोप का मतलब है dy/dx, ठीक है। सो y3 सेकेंड करैक्टेड वैल्यू y2 प्लस h इंटू मीन स्लोप। y2 किनू करैक्ट मान के चले असी, जो हुण असी लेटेस्ट y कड्ढी सीगी पिछे, आ देखो पिछले स्टैप दी 1.5253। तो सेकेंड करैक्टेड वैल्यू आपस च अजे मैच नहीं की, 2 डिजिट्स का डिफरेंस अजे है। अगेन परफॉर्म द फॉर्मूला। सो नैक्सट इत्थे पहुँच के साडियां वैल्यूज़ मैच हो गई। सो इनू असी करैक्ट y3 मन्निया, तो y3 किहड़े पॉइंट ते निकली है, 0.6 ते। साडा क्वेश्चन भी यही सीगा कि असी वैल्यू किहदे ते कड्ढनी सी, 0.6 ते। सो दिस इज़ आवर आंसर फॉर y एट 0.6 इज़ 1.8861। तो आयलर मैथड के अंदर ये 3 स्टैप सीगे। मॉडिफाइड आयलर मैथड के अंदर हर स्टैप के अंदर स्टैप्स ने कि जिहड़ी वैल्यू असी y1 कैलकुलेट कर ली, हुण इनू करैक्ट करना है। फिर इस y1 तो y2 निकलनी है, तो y2 नू करैक्ट करना है।
y2 ਤੋਂ y3 ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ y3 ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ 1.8523 ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈਲਰਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰਰ ਹੈ। ਆਈਲਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਲਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮੈਥਡ ਐਰਰ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕਰੈਕਟ ਮੈਥਡ।